जिनके त्याग ने फैलाया मानवता में उजियारा, युग प्रवर्तक गुरुबचन को शत शत नमन हमारा। युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को दोहराते हुए और उन्हें नमन करते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मार्च महीने की खबरों के साथ अप्रैल महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ समदीश। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, अप्रैल का महीना है और ये महीना जहां बदलते मौसम का पैगाम सुनाता है, तो वहीं युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज के परोपकारों की कहानी कहता है। बाबा गुरुबचन सिंह जी के विचारों और संपूर्ण समाज पर किए गए उपकारों ने मानवता को एक नई दिशा दी। आइए उन्हीं अनमोल विचारों से जुड़ते हैं दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। आज दुनिया ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਨਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਇਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਣਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੀਲ ਉਜਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੀਲ ਉਜਤ ਕਰਨ। ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੀਲ ਉਜਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸੇ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ, ਹੋਈ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੀ ਭਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਪੜੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ।
बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि किसी पर अपने विचारों को थोपने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने से ही मानव एकता स्थापित होगी। इसी मानव एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए और मानव कल्याण करने के लिए मार्च के महीने में भी वर्चुअल माध्यम से ज्ञान चर्चा, सत्संग कार्यक्रम और मीटिंग्स आयोजित की गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सद्गुरु की कृपा से जूम ऐप और वर्चुअल माध्यम से भक्त महापुरुष सत्संग कार्यक्रम और समागमों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। इसी लड़ी में 13 मार्च को निरंकारी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में सद्गुरु ने एक विशेष रहमत बरसाई। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर 13 मार्च को ऑफिस कॉम्प्लेक्स के सेवादारों को सद्गुरु माता जी के पावन चरणों में नमस्कार व आशीर्वाद का सुअवसर मिला। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी ने अपने आशीष वचनों में फरमाया, सत्संगत जी प्यार से कहना, आप सब इतना प्यार जो दे रहे हैं, तो दासी सबसे पहले शुक्राना हर एक का कि इस रूप में दासी को जो आशीर्वाद भी आप दे रहे हैं। तो इधर ऑफिस बिल्डिंग में जहाँ आप सब सेवा भी करते हैं, दातार ये सेवा भाव हर एक का ये और मजबूत करे और साथ ही हर एक को खुशियाँ भी दे। जो खुशियाँ हर एक के हिस्से में हैं उसकी संभाल भी हर कोई करे, क्योंकि निरंकार तो हर पल दे रहा है। अगर संभाल में चूक है तो हमारी ही है। तो दातार जहाँ हर एक को भक्ति भी बख्शे, हेल्थ भी बख्शे, साथ ही ये निरंकार के एहसास में हम अपनी ताउम्र के एहसास में रहें। सत्संगत जी धन्यवाद जी। 20 और 21 मार्च 2021 को मिशन द्वारा 5 राज्यों के जोनल इंचार्ज व क्षेत्रीय संचालक महात्माओं की एक जोनल लेवल की मीटिंग जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई। 2 दिवसीय इस मीटिंग को ICS मॉड्यूल के आधार पर आयोजित किया गया, जिसमें निरंकारी मंडल के अनेक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स भी शामिल रहे। मीटिंग का उद्देश्य हर जोन में प्रचार व व्यवस्था को सुचारू रूप देकर मिशन के संदेश को घर घर तक पहुंचाना था। यहां कोविड-19 के सभी मापदंडों व निर्देशों का पालन भी किया गया। इस प्रकार की मीटिंग पहले मुंबई, महाराष्ट्र में जनवरी माह में भी आयोजित की गई। बाबा गुरबचन सिंह जी का उपदेश सदा यही रहा है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। सारी दुनिया को इसी एकता के धागे में पिरोने के लिए आपने राजमाता जी के साथ दूर देशों में भी जाकर सत्य का परचम फहराया, जो आज भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में जन जन का मार्गदर्शन कर रहा है। Here is the report of all the activities of the mission in the month of March 2021 in the segment Mission Overseas. With the grace of Her Holiness Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, New York branch held its first tree plantation drive on Sunday, March 21st, 2021. As quoted by Baba Hardev Singh Ji Maharaj, pollution is harmful, whether internal or external. And what better way to reduce the external pollution than by planting trees? In addition, many devotees from New Jersey, Connecticut, and New York region participated with unparalleled enthusiasm. Within the outskirt property of the NYCT Bhavan, which was embellished with handmade banners voicing the various quotes of the mission, a small evergreen family tree was planted. COVID-19 prevention protocols that were laid down by government agencies were strictly followed throughout all the events. On March 26th, 22 members of the Sant Nirankari Mission Atlanta branch and members of the community came together to prepare, pack, and deliver 90 meals to Children's Hospital, healthcare workers, patient families, and elderly in the community. In addition, Easter cards were prepared by the younger volunteers and delivered to the medical staff
in celebration and gratitude for the upcoming holiday. The GI and diabetic unit and the orthopedic unit cheerfully shared their surprise and appreciation for the donated meals. We just want to say from our hearts to yours, thank you so much for the food that you're giving to the third floor GI floor. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. North South Ortho. Scottish Rite. On March 29th, we received a letter from Melanie Turner, Volunteer Services Supervisor, stating, "On behalf of children's staff, I would like to thank you and all of the Sant Nirangari Mission Atlanta volunteers for the nurturing meals received these past 6 months. During this unique and uncertain time, your organization has consistently come together to share love through the gift of food. It is no small feat to gather volunteers, execute, and deliver hundreds of hot, delicious meals to hungry healthcare workers. We appreciate all that goes into this wonderful work, from confirming dates to making the delivery and everything in between. It has been a pleasure working with you, and I look forward to continuing our partnership." बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आह्वान किया कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं, और फिर प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए जाने लगे और सद्गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्रद्धालु भक्त अपने रक्त का दान कर मानवता को जीवन दान देने में सहयोग देने लगे। समाज कल्याण की ये मुहिम और विशाल रूप लेती गई। सद्गुरु की रहनुमाई में आज भी सेवा दल और SNCF के वॉलंटियर्स लगातार सामाजिक सेवाओं में जुटे हैं। मार्च के महीने में भी मिशन की ओर से अनेक सामाजिक कार्य किए गए, जिसका ब्यौरा पेश है इस रिपोर्ट में। मार्च के महीने में विभिन्न संस्थाओं द्वारा संत निरंकारी मिशन को कोरोना काल के दौरान की गई सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इसी लड़ी में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा कोविड-19 वॉरियर्स के लिए संत निरंकारी मिशन को ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़कर योगदान के लिए एप्रिसिएशन अवार्ड भी दिया गया। ज्ञात हो कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार कोरोना काल के दौरान संत निरंकारी मिशन के सेवा दल व SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा निष्काम भाव से मानवता की भरपूर सेवाएं की गईं। ये अवार्ड इन्हीं सेवाओं के तहत मिशन को प्रदान किया गया। मिशन द्वारा किए जा रहे लोकहित के कार्यों में रक्तदान एक महत्वपूर्ण समाज सेवा है। अनेक समाचार पत्रों ने मिशन द्वारा किए जा रहे रक्तदान के योगदान को अपने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया तथा इस महान सेवा के लिए मिशन की प्रशंसा की। मार्च के महीने में होली के अवसर पर मथुरा जोन में मिशन के वॉलंटियर्स द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों में कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल तथा पिचकारी, रंग इत्यादि वस्तुएं वितरित की गईं और बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक भी किया गया। 2 अप्रैल को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से 21वें बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखां ग्राउंड्स में किया गया। इस वर्ष क्रिकेट टूर्नामेंट का मुख्य विषय स्थिर मन सहज जीवन है। ये क्रिकेट टूर्नामेंट 2 अप्रैल से 25 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में देश के अनेक राज्यों से आए हुए युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 48 टीमें प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई, जिनका उत्साह देखते ही बनता है। नीस जुवाइन की टीम पहुंच चुकी है समालखां समागम ग्राउंड में, जहां पर खेले जाने हैं लगभग 48 टीमों से 2 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक क्रिकेट टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के याद में उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए उनको समर्पित किया गया है। लगभग पिछले 21 वर्षों से लगातार ये टूर्नामेंट हो रहे हैं और आज मेरे पीछे जो आप ये टीम देख रहे हैं, ये खेलेगी 2 अप्रैल को इस टूर्नामेंट का पहला मैच। यहाँ ये टीम पहुंची और हमने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार एक एक व्यवस्था को बड़ा ही सुचारू रूप दिया गया। गवर्नमेंट के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए एक एक क्रिकेटर, एक एक मैच खेलने वाले, व्यवस्था बनाने वाले सभी के कोविड टेस्ट को यहाँ पर चेक किया गया है। यहाँ तक कि मुझे भी यहाँ एंट्री, हमारी जो न्यूज़ डिवाइन की टीम है उनको भी कोविड नेगेटिव आने के बाद ही यहाँ परमिशन मिली है। सबसे पहले सतगुरु माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
कि जिन्होंने हमें इस स्पोर्ट्स के ज़रिए हमें मौका दिया है कि हम मिशन का कुछ नाम कर सकें। और दास का ये हमारी मलेरकोटला की टीम का मतलब कि पहला टूर्नामेंट है और हम इतना ब्लेस फील कर रहे हैं कि बस कुछ भाव व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है अभी दास के पास। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आरंभ बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा बाबा गुरबचन सिंह जी की स्मृति में किया गया था। बाबा गुरबचन सिंह जी ने युवाओं की ऊर्जा को नया आयाम देने के लिए उन्हें सदैव ही खेलों के लिए प्रेरित किया ताकि उनकी ऊर्जा को उपयुक्त दिशा देकर देश एवं समाज का सुंदर निर्माण तथा समुचित विकास किया जा सके। खेल कोई भी होवे अगर उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाई रखी है और नाल टूर्नामेंट का जड़ा नाम है बाबा गुरबचन सिंह जी जिन्होंने मानव एकता और इंसानियत नू जिंदा रखने दे लई अपने बलिदान भी दिता और भी अनेक महापुरुषों ने जीवन सच दे लेखे लगाया। तो इस तरह के नाल वो जिहड़ियां वैल्यूज़ हैं वो जिहड़े प्रिंसिपल्स हैं वो भी असी हमेशा ही अपनाई रखिए। वर्तमान समय में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समय समय पर एक नई ऊर्जा के साथ विभिन्न खेलों का आयोजन करके युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें निरंकारी यूथ सिंपोजियम और निरंकारी सेवा दल सिंपोजियम जैसे इवेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समालखां में आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अवसर पर संत निरंकारी मंडल के पदाधिकारी, केंद्रीय योजना एवं सलाहकार बोर्ड के सदस्य एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी सम्मिलित हुए और संत निरंकारी मंडल के प्रधान आदरणीय भाईया गोविंद सिंह जी ने इस टूर्नामेंट का शुभारंभ ध्वजारोहण से किया तथा आदरणीय सुखदेव सिंह जी चेयरमैन केंद्रीय योजना एवं सलाहकार बोर्ड ने शांति प्रतीक के रूप में आकाश में गुब्बारे छोड़े। इन खेलों का उद्देश्य एकाग्रता और सामुदायिक सामंजस्य की भावना को बढ़ाना एवं शारीरिक व मानसिक रूप से युवाओं को स्वस्थ बनाना है, जिससे कि सभी स्वस्थ रहें और सत्संग, सेवा एवं सुमिरन में सजगता के साथ अपना और अधिक योगदान दे पाएं। यही मिशन का प्रयास भी है। इन सेवाओं को करने की प्रेरणा जहाँ सद्गुरु देते हैं तो वहीं तौफीक और ताकत भी आप ही दे रहे होते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने ना केवल सेवा भक्ति की शिक्षा दी बल्कि समाज में नारी सम्मान को भी बढ़ावा दिया। निरंकारी राजमाता जी को आपने अपने बराबर स्थान दिया और सत्य पथ पर हर कदम पर अपने साथ रखा। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से निरंकारी राजमाता जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ मिशन के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। कि शहंशाह जी ने जब बाबा गुरबचन सिंह को गद्दी दी और पास मुझे बिठाया और कहने लगे कि मैं तो अकेला प्रचार करता रहूं, और 6 बरस हो रहे बाबा जी को सिंहासन पे बिठाकर। फिर कहते थे एक दिन संगत में, भाई मैं जो सारी उम्र में इतना प्रचार नहीं किया, इन्होंने 6 बरसों में कर दिया, क्योंकि मैं अकेला था, ये दोनों प्रचार पे लग गए हैं। काफ़ी खुश होते थे। फिर हमारे ऐसे इंडिया में भी बड़े टूर लगे, बाई बस भी लगे, बाई ट्रेन भी लगे, गांव-गांव में जाते रहे, शहरों में, गाँव में, हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, जितने भी मतलब हमारे इधर इंडिया में जगह है, कोने कोने में ऐसे टूर चलते रहे। फिर इसी तरह बाहर का टूर बन गया। तो उधर बस 1-2 ही महापुरुष थे इंग्लैंड में, एक उपासक जी थे, एक और थे ज्ञान सिंह जी। उनके पास ही जाकर ऐसे बैठ के सत्संग कर लिया। इधर से सिर्फ मैं तो बाबा जी जा रही मोहन शर्मा। उसके बाद फिर हमारा ऐसे टूर लगते रहे। फिर बाबा जी का ध्यान आया कि हम बाई रोड करें, इधर से चलें बाई रोड इंग्लैंड में जाएं। फिर हमने ईरान से गाड़ी खरीदी, वॉक्सवैगन ख़रीद कर, तो हम बाई रोड गए। रास्ते में बस ऐसे जहाँ कैंपिंग आए, जहाँ पेट्रोल पंप आए,
उधर बस गाड़ी खड़ी की, उधर बस हम गाड़ी में लेट के मैं तो बाबा जी और एक साथ टेंट ले लिया था उसमें, और जो साथ थे 4-5 बाबू महादेव सिंह जी, पुरी साहब, प्रधान जी, रास्ते में जो भी ब्रेड मिले, जो भी थोड़ा बहुत टिन सब्जी के ले लेते थे, छोटा सा गैस सिलेंडर ले लिया, फ्राई पैन ले लिया, थोड़ा ऐसे सब्जी डाली, गरम की ब्रेड। कभी तो इतनी इतनी लंबी ब्रेड होती थी, उसको कैंची से काट के पीस पर, कभी ऐसे जैसे पाती नहीं होती कोई, तरह तरह की, मतलब हर जगह जहाँ भी टर्की या जिस जगह भी गए, सुबह 4 बजे चलना, कई दफ़ा तो 12 बजे, रात को 12-1 गाड़ी खड़ी करनी। तो इसी तरह चलते रहते थे। फिर आस्ता आस्ता ऐसे बस संगतें बढ़ती गई, शुरू हो गई। तो रास्ते में कभी कहीं ऐसे खाना खाया, टेंट लगाया, ऐसे फ़ोटो देखा होगा आपने, बाबा जी ऐसे सतीर बड़ा सा लकड़ी पड़ी है जंगल में, बाबा जी वहाँ लेटे हुए हैं। तो इसी तरह ही बस रात दिन चलते चलते 2-3 टूर हमारे बाई रोड हुए। फिर उसके बाद जैसे जैसे संगतें बढ़ती गई, फिर आगे और टूर चल पड़े, अमेरिका के, कनाडा के, यूरोप के। पहले तो सारा यूरोप किया, उसके बाद फिर अमेरिका, कनाडा, जैसे जैसे सब जगह संगतें बढ़ती गई। तो इंडिया का भी मेरा ख्याल कोई ऐसा शहर, ऐसा गांव नहीं जो बचा हो, जो बाबा जी के साथ मैंने टूर ना किया हो। तो मैं सुबह से लेकर रोज़ का रोज़, जितना भी दिन को सुबह से लेकर रात तक, सोने तक, जो जो दिन में होता था मैं डायरी लिखती गई, नोट करती गई। बड़े बड़े पेपर, उस वक़्त तो ना टेलीफोन थी, चिट्ठी भी डालते थे, वो भी काफ़ी महंगा पड़ता था, देर से मिलती थी। मैं जब हफ्ते का होता था, मैं शहंशाह जी का, शहंशाह पे सबको बुला के कहते आप तो समझते होगे ना, माता जी बाबा जी घूमने गए हैं, देखो। और शहंशाह जी की आंखें ऐसे नमी से, आंसुओं से भरी होती थी। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का कहना था कि शरीर बदलता है, ख़त्म होता है, लेकिन गुरु अमर होता है। गुरु के वचन, उनकी शिक्षाएं अमर होती हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बाबा गुरबचन सिंह जी की अनमोल शिक्षाओं को दोहराकर हमें उन पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं उन्हीं अमृत वचनों से। आज जहाँ कितने महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर किए कि बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ उनको रहने का समय लगा, और किस तरह उन्होंने वो ज़िंदगी के एपिसोड सुनाए कि उनके साथ कोई इंटरेक्शन, कोई शिक्षा, कोई 1-on-1 जैसे कहते हैं कि उनसे वो मुलाकात रूप में अपने ज़िक्र किए। पर काफ़ी हम में से ऐसे हैं जिन्होंने उनको कभी उस तरह शरीर रूप में देखा नहीं। तो हम अपना योगदान कैसे दें कि जो उन्होंने उस समय सिखलाई दी है, उनके चाहे शरीर रूप में तो दर्शन नहीं कर पाए, नहीं सीख सके, पर किस तरह उनकी शिक्षा को और आगे, उनकी लेगेसी को हमने इस मिशन में किस तरह बढ़ाना है। तो वो जिम्मेवारी भी हम सब पर है कि जो हर वचन निकला था उस पर फूल चढ़ाते हुए सच्चे रूप में, कि सिर्फ़ एक वो नहीं किया कि चलो संगत आ गए और उनको कुछ घंटों के लिए याद किया और बात वहीं ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं। अपने हर पल में वो जो भी छोटी से छोटी चीज़ भी सिखा कर गए, वो अभी तो हमको इतना मीडिया का सहारा है कि हमें जहाँ साक्षात महापुरुष भी बताते गए, अभी हमने डॉक्यूमेंट्री रूप भी देखा कि वो चीज़ें हम पुरानी भी देख सक रहे हैं, उससे भी शिक्षा ले सक रहे हैं। जिस तरह आज अगर हम ये ब्लड डोनेशन का रूप भी देख रहे हैं कि उनके किस तरह बलिदान के रूप में और तप त्याग के वजह से ये हमने ये रूप जो देखा, ये इसीलिए है कि जो शिक्षा थी, जो हम जिक्र बार बार सुन रहे हैं कि मानवता के लिए हमने जो अपने आप को अर्पण करना है, जो एक
जो श्रद्धा रूप में, जो किसी के लिए भी हम मदद रूप में नहीं पर सेवा भाव में, क्योंकि मदद में तो हम सोचेंगे तो स्वार्थ छुपा है, पर सेवा भाव सिर्फ अर्पण का भाव होता है। उसके बदले कुछ मिले ना मिले, वो भाव की जो रक्त दे रहा है उसको ये नहीं पता कि जो जिसको रक्त रिसीव होगा वो कौन होगा, कहाँ पे होगा, किस जाति का होगा, किस शहर का होगा, किस प्रांत का होगा, क्या खाता होगा। नहीं, ब्लड का तो क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच होता है तो वो रिसीवर उसको उस तरह ले सकता है। तो वही भाव की जो एकता का भाव हमने इस रूप में भी अर्पण किया कि कोई प्रेजुडिस नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई मन में वो भाव नहीं, बस इतना कि अपना हमारा अगर रक्त है वो कहीं ना कहीं किसी के किसी रूप में भी आए और पूरी मानव जाति का इसमें कल्याण कर सकें। और जहाँ बाबा गुरबचन सिंह जी का नाम आता है, साथ में चाचा प्रताप सिंह जी का भी आज के दिन में, उनकी शिक्षा किस तरह आज हम जब भी वर्दी डालते हैं सेवा दल की तो वो जो एक प्राउड फीलिंग होती है कि ये वर्दी ऐसे महान हस्तियों ने, जहाँ बाबा हरदेव सिंह जी ने भी स्वयं डाली, वहाँ चाचा प्रताप सिंह जी और अनेक ऐसे महापुरुषों की पहनी हुई वर्दी वो हमारे नसीब में आ रही है। तो वो सेवा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी है। साथ ही हम और अगर बाबा गुरबचन सिंह जी की ज़िंदगी में जाएं और देखें कि उन्होंने क्या क्या सीखा था, वो शिक्षा उन्होंने यही सिखाई कि अगर आग में हम और आग जोड़ेंगे तो आग तो प्रफुल्लित होगी और बढ़ेगी। आग को बुझाने के लिए तो सिर्फ पानी का ही एक मात्र साधन है जो उस आग को बुझा लेगा। कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या हमें नफ़रत करनी है या कोई ऐसे काम करने हैं जो सिर्फ हमारे अंदर मन के तो हमें तकलीफ़ देगा ही देगा, पर उसका आउटकम दूसरे के ऊपर भी नुकसानदेही होगा। तो क्या हमें वो करना है या हमें ह्यूमन वैल्यूज़ को लेके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हमें प्यार वाला, हमें विशालता वाला, हमें एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक वननेस वाला, एक एकदम प्रेम जैसे नम्रता भाव पूरा अपने अंदर धारण करने वाला भाव, वो लेकर ही अपने जीवन में आगे चलना है। दोस्तों, इस महीने की खबरों में बस इतना ही। आइए मिलकर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को दिल में बसाएं और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के बताए रास्ते पर चलते चलें। और चलते चलते हम आपको याद दिलाते चले कि बाबा गुरबचन सिंह जी के परोपकारमय जीवन से प्रेरणा लेने के लिए इस महीने की 24 तारीख को वर्चुअल माध्यम से मानव एकता दिवस समागम से जुड़ना और ब्लड डोनेशन में अपना योगदान देना ना भूलें। तो अब संदेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन निरंकार।